द संकेत लाइव में मैं ऋषि खान। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी से अधिक वजन होने के कारण पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेल रही थी। बुधवार रात जब उनका वजन नापा गया तो उनका वजन महज 100 ग्राम अधिक निकला, जिसकी वजह से उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। कहा जा रहा है कि जब उन्हें इस बात का पता चला तो उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। बुधवार रात होने वाले 50 किलोग्राम की कैटेगरी में विमेंस रेसलिंग के फाइनल में अब विनेश फोगाट हिस्सा नहीं ले सकेंगी। 3 मुकाबले जीतने के बाद वो फाइनल में पहुंची थी और साथ ही उन्हें अब कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। सबसे मुश्किल बात यह है कि इसके खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। विनेश फोगाट पहली बार 50 किलोग्राम की महिला कुश्ती में भाग ले रही थी। इससे पहले वे 53 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती थी। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से भी बात की और रेसलर की मदद के तरीके तलाशने के लिए कहा है। साथ ही पीटी उषा से इस मामले में विरोध दर्ज कराने की मांग की। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dingshaw Patiwala and the Chief Dimission Gagan Narang through the night to ensure that she could meet the competition requirements. Wrestlers usually participate in a weight category less than their natural weight. It gives them an advantage since they are fighting with less stronger opponents. The process of weight cut prior to the weight in the morning involves a calculated restriction of food and water, and besides this the athlete needs to sweat, and that sweating is done with sauna and with exercise. Now this weight cut has the benefit of putting you into a lighter weight category but does cause weakness and energy depletion, and this is counterproductive to participation. So most wrestlers will thereafter go in for some amount of energy restoration with limited water and high energy foods, and these are usually given after the weigh-in. The calculation from the nutritionist which is done is athlete specific, and Vinesh's nutritionist felt that the usual amount that she takes is about 1.5 kilograms totally over the day, which gives enough energy for the bouts. Sometimes there's also a factor of a rebound weight gain following competition. Now Vinesh had 3 bouts, and hence to prevent any dehydration, some amount of water had to be given. We found that her post-participation weight was increased more than normal, and the coach initiated the normal process of weight cut that he has always employed with Vinesh. This is something that's worked with her for a long period of time. He felt confident that this would be achieved, and over the night we went ahead with the weight cut procedure. However, in the morning we found that despite all of our efforts, her weight was 100 grams over her 50 kilogram weight category, and hence she was disqualified. We had tried all possible drastic measures throughout the night, including cutting off her hair, shortening her clothes, and despite all of this, we could not make that 50 kg weight category. Following disqualification as a precautionary measure, Vinesh was administered some intravenous fluids just to prevent dehydration, and typically we get a few blood tests done just to make sure that everything is normal. So this process is going on at the local Olympic hospital here. All of Vinesh's parameters during this weight cut were normal, and throughout this process she actually felt perfectly normal. Vinesh just interacted with IOA President Dr. Mrs. P.T. Usha and mentioned that although she is physically and medically perfectly normal, she is disappointed that this is her 3rd Olympics and she had to be disqualified.
The IOA is taking every step to ensure that the morale of the contingent remain high. We are sure all Indians will stand with Vinesh and the entire Indian contingent. बताया जा रहा है विनेश और उनके कोच को मंगलवार रात ही उनके वजन के बारे में पता चल गया था। विनेश फोगाट रात भर सो नहीं पाई, साइकिलिंग, स्कीपिंग और स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज करती रही। साथ ही उन्होंने अपने बाल और नाखून तक काट दिए थे, फिर भी उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला और उन्हें ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। भारतीय दल ने उन्हें थोड़ा और समय देने की भी मांग की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई। विनेश फोगाट मंगलवार को 3 मुकाबले जीतने के बाद 50 किलोग्राम की विमेन्स रेसलिंग में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। विनेश को बुधवार रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के लिए अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। ओलंपिक नियमों के मुताबिक अब विनेश की जगह सेमीफाइनल में उनसे हार चुकी क्यूबा की गुजमान लोपेजी ही फाइनल खेलेंगी। साथ ही लोकसभा में आज संसद सत्र में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी विनेश फोगाट की डिस्क्वालिफिकेशन पर बात की है। मांडविया जी। स्पीकर साहब, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। उन्हें बुधवार 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ,
शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर, इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।